Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, a very good day to each and every one of you, and I hope the next few minutes are make your day a lot more productive. Okay, so one subject, obviously this is a new subject, okay, which is not a very favorite of many students. In fact, from the time I was in college, which is a long time back, okay, तभी से आज तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ओके, अगर एक हेट लिस्ट है 12th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट्स का, उसमें ये पहले या दूसरे नंबर पे तो आता ही है इकोनॉमिक्स. नाउ या तो इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि प्यार से वो सीख लो, ज़ोर ज़बरदस्ती से ना सीखो. इकोनॉमिक्स में वो प्यार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से ही सीखना पड़ता है. आई होप दैट द लेक्चर्स दैट आई डिलीवर कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स, वो ज़ोर ज़बरदस्ती को बदल के, उस इमोशन को बदल के, ओके, प्यार का इमोशन, कि सर आई एक्चुअली लाइक दिस सब्जेक्ट, आई लव दिस सब्जेक्ट. आई होप आई कैन डू दैट transition. For those of you who already like this subject, hey, great. I hope I can just give you a little bit of a push in the certain concepts, certain calculations which may be a little bit difficult. Okay, so it's obviously a new subject. This is the very first cover that you see when you buy this particular textbook. And one difficult thing about the economic subject for your 12th standard Maharashtra board level is what? Is the language. Okay, there are many other subjects, OCM कहो, English कहो, SP कहो, अकाउंट्स कहो, ओके, भाषा समझ में आ जाती है थोड़ा मेहनत करके. बट जितनी मेहनत, जितनी अंग्रेजी, वॉट एवर इज द इंग्लिश दैट यू हैव लर्नड, ओके, when you try to use all of that knowledge of English in this subject, you still sometimes fail to understand. So I read the entire paragraph, the entire page, okay, sir, at the beginning of this movement of me opening this economics textbook, no sir, I had lots of hair. After reading 2-3 chapters, sir, my situation has become like you. I've lost all my hair. I wouldn't disagree with that, okay, not about the hair part, but about the frustration that many students face, because
द लैंग्वेज इज नॉट अ हाई हेलो लैंग्वेज. ओके, व्हाट्सएप नहीं, ये व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज भी नहीं है. ओके, ये दोस्तों का भाषा नहीं है, ये दुश्मनों का भी भाषा नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का भाषा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नॉर्मली लर्न. ओके, let's see as and when the portion goes ahead, the chapters go ahead, I'll do my best. मुझसे जो बन पाएगा वो मैं पूरा करूँगा ये कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आज का पहला लेक्चर इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर, बिकॉज यू शुड ऑलवेज नो, एक वाहन चालक को पता होना चाहिए कि उसका रास्ता क्या है. ओके, एंड तक लेफ्ट कहाँ पे आएगा, राइट कहाँ पे आएगा, स्पेशली अगर आप रेस में हो और आपको पूरे ट्रैक की जानकारी नहीं है एंड तक की, बिकॉज आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है टर्न, डिग्री का टर्न, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, राइट एंगल की डिग्री कितना. इफ़ यू आर द ड्राइवर ऑफ अ कार और एनी व्हीकल, you must to get good results, best results, know the road ahead. And that is what I am doing in these introductory lectures. I am introducing the entire syllabus to you, so you know when I go to this chapter what can I expect to be in that chapter, and later on at the end of this lecture I will show you the weightage. Because हो ना हो, हम टीचर्स जितनी भी कोशिश कर ले आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाने की, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, सर वो सब रहने दो, इम्पोर्टेंस हमको बताओ. नाउ इकोनॉमिक्स इज सच ना, जब आप इसका मार्किंग पैटर्न देखोगे तो यू विल बी, सर इसमें से कैसे पता चलेगा इम्पोर्टेंट क्या है. नहीं पता चलेगा. लगभग सारे जो चैप्टर्स हैं ना वो आपके लिए और मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही है. यू हैव गॉट 10 चैप्टर्स. वेल एक्चुअली वो नंबर वाइज 10 आता है, but one of the chapters is bifurcated into 2 parts, 3A 3B, 3A 3B. तो individually गिनने को जाएंगे तो 10 नहीं आएंगे, 11 आएंगे at least. Okay, and every chapter has its own concept and has its own लंबाई, okay, that you are supposed to be learning. Okay, so maybe the next time we meet I will start with the first thing, which is an introduction to micro and macro economics. In fact, ये जो index आप यहाँ पे देखते हो ना, half of this is dependent on माइक्रो एंड हाफ ऑफ इट एट द बॉटम इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो. तो पहले तो ऑब्वियसली मुझे ये समझाना पड़ेगा ये माइक्रो क्या है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. ओके, राइट नाउ दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. पूरा नहीं बट थोड़ा सेंसेशन में, थोड़ा कम टाइम लेके. सो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट वन, व्हाट विल यू लर्न. आप मीनिंग पढ़ोगे, फीचर्स पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, किसका, माइक्रो एंड मैक्रो. देन यू मे से बट सर ये माइक्रो होता क्या है. देखो माइक्रो नॉर्मली होता है स्मॉल. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द कंट्री ऑफ इंडिया, बिकॉज मेनी ऑफ यू, वन ऑफ द रीजंस जो ना बच्चों को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, दे कैन नॉट रिलेट दिस सब्जेक्ट टू देयर लाइफ. अपने ज़िंदगी के साथ किसी तरह का कनेक्शन उनको दिखता नहीं है. वो बोलते सर मेरे फैमिली में काम आएगा, मेरे दोस्तों के साथ काम आएगा. ओके, किस में काम आएगा, व्हेन इज इट यूजफुल. एंड एक्चुअली राइट नाउ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स जो माइक्रो के हैं आपको थोड़ा थोड़ा काम आ सकता है, जो मैक्रो के हैं वो अभी नहीं, वो थोड़े और बड़े बन जाएंगे. बिकॉज द वर्ड मैक्रो इटसेल्फ मीन्स बड़ा. ओके, एक बड़े लेवल पर, एक बड़े स्तर पर, तभी आपको काम आएगा. ओके, सो माइक्रो का मतलब क्या होता है, एक स्टडी. किसकी स्टडी, एक इंडिविजुअल की, एक इंडिविजुअल के घर की, एक छोटे दुकान की. ओके, तो माइक्रो स्टडी मतलब द स्टडी ऑफ स्मॉल आइटम, स्मॉल वेरिएबल्स एट अ स्मॉल लेवल. बट मैक्रो डज नॉट मीन दैट. ओके, मैक्रो का मतलब है पूरे देश की पढ़ाई. देखो जो इंडेक्स था, हाफ ऑफ द चैप्टर्स डिपेंड ऑन एक्सप्लेनिंग टू यू the circumstances and the situations and the components and the contents of microeconomics, and half of your syllabus explains to you macroeconomics national level पे, देश के स्तर पर. तो ये आपका पहला चैप्टर होगा. दूसरा है यूटिलिटी एनालिसिस. क्या पढ़ोगे, फीचर्स पढ़ोगे, टाइप्स पढ़ोगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility. You have to first understand, hey, what's utility? Utility, usefulness क्या सेम है? नहीं.
उसमें फर्क है ओके। कुछ चीज़ें जो कुछ लोगों के लिए यूटिलिटी देती है, कुछ दूसरे लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगी। अभी ये क्या है वो, when I tell you what does utility mean, then I will tell you what does law of diminishing marginal demand means. okay, इसका मतलब क्या होता है? well, ऐसा है कि अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो उसका डिमांड आप शुरुआत में ज़्यादा करोगे क्योंकि आपको उसकी तलब लगी है, यू वांट इट। जैसे ही वो मिल जाएगा आप 1 लोगे, 2 लोगे, 4 लोगे, 6 लोगे, आप बोलोगे नहीं अभी पेट भर गया, अभी और मत दो। आप डिमांड थोड़ा थोड़ा करके कम करोगे ओके। तो उसको कहते हैं डिमिनिशिंग। तो ये लॉ क्या है, ये लॉ के फीचर्स क्या है, ये लॉ के एक्सेप्शंस क्या है ओके, ये लॉ किस तरह आपको समझना है एंड हाउ इज इट यूजफुल टू यू एट अ माइक्रो लेवल, यूटिलिटी के चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट वी गो टू 3A एंड देन 3B। 3A में आप क्या सीखोगे? डिमांड एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? डिमांड मार्केट में चीज़ें क्या क्या बिकती है जिसका डिमांड होता है ओके। तो डिमांड किस वेराइटी का होता है? व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड के साथ में कौन से कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज प्लीज नोट you even as a student of 16 year old or 17 year old और अगर कुछ अटेम्प्ट लग गए रहेंगे तो 18 year old ओके, डिमांड थिंग्स। इनफैक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स, अ स्मार्टफोन, अ स्मार्ट वॉच ओके, क्लोथ्स, यू डिमांड ऑल ऑफ दिस। तो डिमांड के साथ में क्या क्या कनेक्टेड है और ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ओके। अगेन you at an individual level demand something, the country of India at a national level also demands something from its neighbors, from its world allies, from its different countries जहाँ से वो import करती है। तो demand small level as well as at a global level पे होता है okay। the next thing, डिमांड में थोड़ा माइक्रोस्कोपिक नॉलेज अगर आपको समझना है, then you have to understand types or you have to understand the wording elasticity of demand. What do you mean by elastic? रबर इलास्टिक होता है, उसको आप खींच सकते हो, कितना खींच सकते हो ओके, is what is the concept of elasticity. If you read, refers to the degree of responsiveness ओके, responsiveness, response करना of quantity demanded to a change in its price or other factor. अगर कोई भी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस चेंज किया जाता है तो उसके डिमांड में कितना बदलाव आएगा ओके। द मोमेंट नॉर्मली अगर प्राइस कम होता है तो लोग उसको ज़्यादा डिमांड करेंगे, बट अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसको कम डिमांड करेंगे। नाउ अगेन दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। अच्छा, प्राइस अप डिमांड डाउन, प्राइस डाउन डिमांड अप, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। इट मैटर्स कि आप क्या प्राइस की बात कर रहे हो, इट मैटर्स कि आप कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, बिकॉज मेनी अ टाइम्स प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, वैक्सीन्स रिक्वायर्ड। अगर वो वैक्सीन आपको कोविड-19 से बचाता है और वो फ्री का अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम फ्री का नहीं देंगे, सबको प्राइस देना है, देन सबको प्राइस देना पड़ेगा। कुछ लोगों को थोड़ा कम प्राइस, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्राइस, बट जान बचानी है ना, तो देना तो पड़ेगा ही। आई एम जस्ट सेइंग, अगर कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो जान बचाने के लिए काम आती है तो उससे उसका प्राइस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो बेसिकली व्हेन यू लर्न elasticity of demand, you will try to understand that there are many factors that affect demand. जब वो फैक्टर्स में ऊंच नीच होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे उसका क्या असर होता है। तो 3A 3B will teach you that, and then the continuation of demand is supply analysis, because डिमांड होगा तो ही तो सप्लाई होगा। ओके, मैन्युफैक्चरर्स विल ओनली मैन्युफैक्चर। ओके, अगर एक रास्ते पे ठेला है और वो लेट्स से पानी पूरी, शेव पूरी और दही वड़ा ना, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाता है, बट देन उसको पता है कि दिन में जो उसका बिजनेस होता है वो मैक्सिमम पानी पूरी का होता है, तो वो ही ज़्यादा रेडी रखेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में रेडी रखेगा, बिकॉज व्हाट इज डिमांडेड is what is supplied from the manufacturer's angle. Okay, so in supply analysis
you will learn the meaning of supply, you will learn the determinants of supply कि क्या चीज़ों से supply इफेक्ट करता है, एंड ऑल्सो जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड यू विल लर्न लॉ ऑफ सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी की चीज़ें अगर सेम रहती है, सेम लेवल पे रहती है, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। डिमांड का बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे, जैसे प्राइस ऊपर जाता है क्वांटिटी का सप्लाई बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मैन्युफैक्चरर है उसका मुनाफा भी बढ़ता है। लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। इनफैक्ट काफ़ी बार मैन्युफैक्चरर्स जानबूझ के सप्लाई नहीं करते हैं मार्केट में, उनके पास होता है प्रोडक्ट, वो रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। क्यों? वो बोलते अभी बेचेंगे, अभी तो प्राइस बहुत कम है मार्केट में, तो अभी हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला, हमारा नुकसान हो जाएगा। सो डिमांड इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड सप्लाई इज अनदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसके लिए जो कानून थिंकिंग एप्लीकेबल है सप्लाई के लिए, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। दैट इज व्हाट यू विल बी लर्निंग इन सप्लाई एनालिसिस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। ओके, ये डिमांड सप्लाई का चक्कर चलता कहाँ पे है? मार्केट्स में चलता है। तो यू शुड नो कि कौन से टाइप के मार्केट होते हैं। यू में से सर इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट होता है, कपड़ों का मार्केट होता है, फिर टेक्सटाइल का मार्केट होता है, फिर डिफरेंट चीज़ों का, भाजी का मार्केट होता है, मच्छी का मार्केट होता है, मीट का मार्केट होता है। नहीं, हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे प्रोडक्ट जो टाइप का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है ना, नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑब्वियसली इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स मार्केट। ओके, हाँ, सो देर इज अ मार्केट जिसका नाम हो सकता है मोनोपोलिस्टिक, देर इज अ मार्केट जिसका नाम हो सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कॉम्पिटिशन? यू सी द वर्ड इटसेल्फ इज सो गुड, परफेक्ट। मतलब वो टाइप की मार्केट में इक्वल नंबर ऑफ सप्लायर्स, इक्वल नंबर ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर का भी चलता है, कस्टमर का भी चलता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, गुड। अगर मेरे को तू नहीं पसंद आता है, तेरा प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है, मैं सी के पास जा सकता हूँ, डी के पास जा सकता हूँ, ई के पास जा सकता हूँ, गुड, परफेक्ट। बट मेनी अ टाइम्स मार्केट्स आर नॉट लाइक दैट। मार्केट्स आर सच जहाँ पे पूरे अगर आप इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन का इंडस्ट्री देखो, मार्केट टेलीकम्युनिकेशन का, देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स। आपको BSNL मिल जाएगा, चलो इतना मशहूर नहीं है, आपको जियो मिल जाएगा, वोडाफोन मिल जाएगा, एयरटेल मिल जाएगा, यू हैव ऑप्शंस। ओके, हाँ, सिमिलरली इफ यू गो टू दुबई, ओके, दुबई में मोबाइल अगर आपको लेना है तो दो ही कंपनी है। ओके, एक एतिसलात करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक डू, और दोनों कंपनी गवर्नमेंट चलाती है, दोनों कंपनी गवर्नमेंट चलाती है, देयर इज नो प्राइवेट टेलीकॉम। तो द टेलीकॉम मार्केट इन इंडिया इज लाइक अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, इनफैक्ट जब जियो आया था, जियो ने फ्री देना स्टार्ट किया, तो ऑटोमेटिकली जो वोडाफोन है, जो एयरटेल है, उन्होंने जाके, एक कमिटी आती है, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक एस्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट बनाता है, ओके, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके पास जाके कंप्लेन किया कि इफ जियो इज गोइंग टू गिव एवरीथिंग फ्री, देन हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव? सो ऑटोमेटिकली जियो पे दबाव डाला गया, यू कैन कीप एंड गिविंग फ्री, ओके, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इन दिस मार्केट, तो देर हैज़ टू बी अ रेट, एंड आपका रेट ही लगभग एयरटेल, वोडाफोन वो भी चार्ज करेगी। ओके, तो आई रिपीट, हाँ, देन क्या हो जाएगा? मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली भी एक टाइप का मार्केट होता है जहाँ पे सिर्फ एक, जैसे मैंने दुबई का एग्जांपल दिया, ओनली वन सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट की दो कंपनीज है, वो दोनों एक ही कंपनी है। भाई मेरे को अगर इंटरनेट चाहिए, मोबाइल का डेटा चाहिए, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के प्राइस मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरी सिंपली जस्ट लाइक दैट इफ़ यू गो टू चाइना, ओके, द चाइनीज गवर्नमेंट इज सच दैट वो बोलती है हमारे यहाँ पे फेसबुक नहीं है, हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं है, हमारे यहाँ पे गूगल ही नहीं है वहाँ पे। सो चाइनीज गवर्नमेंट अलाउज ओनली a certain company, or Chinese people have to use the services only of that company. So the market in India, the market in Dubai, the market in China is different. Okay, so that's what you will be learning in forms of market. Next,
is something which is related to statistics, not mathematics but statistics, क्योंकि this chapter is based on index numbers. होता क्या है, देखो index number is an economic data figure. It's a number reflecting price or quantity compared with a standard or base value. There are something called as inflation. What does inflation mean? Your नाना नानी में से हमारे ज़माने में एक आम, एक संतरा, एक एप्पल, एक सेब इतने का आता था, 10 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का. अभी एक 50 रुपए का आता है, 100 रुपए का आता है. तो क्या हो गया, भाव बढ़ गया. कितना बढ़ा, कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज से बढ़ा, कंपेयर करना पड़ेगा ना. इंडेक्स नंबर्स उसके लिए हमारी सहायता करेगी. एक होता है बेस ईयर जिसके साथ में आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, और एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस. जब आप कंपेयर करोगे तो इंडेक्स नंबर्स, ओके, उसके जो फीचर्स है, उसके जो टाइप्स है, ये चैप्टर में यू विल लर्न दैट, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एंगल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट, what does national income mean? You see, at your home, whose income is important? Papa's income, mama's income, brother's income, sister's income. That is an individual income, personal income. Okay, so what does national income mean? Nation का income, पूरे देश का income. अच्छा, nation का income आपको क्यों calculate करना है? Well, then you come to know ना, कौन सा देश टॉप पे है, कौन सा देश सेकेंड है, कौन सा देश थर्ड है. So this chapter of national income will teach you the features. It will teach you, very important, the circular flow of national income. Okay, there is 2 sector, 3 sector, 4 sector. What you see is one of the examples कि भाई पैसा यहाँ से निकलता है, इसके पास जाता है, उसके पास जाता है, घूम फिर के वापस वही पहले आदमी के पास में आ जाता है. So I repeat myself, हमारा पूरा देश कमाता कितना है, बट उसको कैसे ढूंढेगी, मतलब देश में कितने लोग हैं, कितने बिजनेसेस है, छोटे बड़े मीडियम साइज के बिजनेसेस. क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है. टू फाइंड नेशनल इनकम देयर हैज टू बी अ फॉर्मूला devised, and that is what you will learn in the chapter of national income. Next, public finance in India. What is public finance? Well, that is the reason there is a banking sector. Okay, इंडिया के अंदर, ओके, जो पब्लिक को फाइनेंस लगता है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है. द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्चा, ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल. बिकॉज पब्लिक एडुकेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे यू विल टेक केयर ऑफ योर ओन हाउस. मैं मेरे घर वालों के खाने का, पीने का, नहाने का, कपड़ों का मैं ख्याल रखूँगा, मैं मेरे घर का ख्याल रखूँगा. ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ द नेबरहुड. मुश्किल है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ रिच. तो घर के बाहर की साफ़ सफाई कौन करेगा, रास्तों की साफ़ सफाई कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, सरकार करेगी. बट सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे. हाँ, तो वो ना, वो दैट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक फाइनेंस concept, and that is what you will learn in this particular chapter कि सरकार अपना पैसा कहाँ से बंदोबस्त करती है. ओके, नेक्स्ट थिंग तो इज कॉल्ड एज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो यू शुड नो ये मनी मार्केट क्या होता है, ये कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में, कैपिटल मार्केट क्या रोल प्ले करता है. तो शेयर्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, ओके, जहाँ से पैसों का बंदोबस्त किया जा सकता है गवर्नमेंट लेवल पे, उसको आप मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट में स्टडी करोगे. देन द इंडेक्स में द लास्ट वन, दैट इज फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. फॉरेन ट्रेड इज डन बाय every country in the world, because today the world is one, I would say, country. Well, it's technically, geographically not, but every country depends upon its requirements. India is not self-sufficient country. We have a lot of cereals, we have a lot of, I don't mean saas bahu ke cereals, okay,
फूड ग्रेन्स, गुड, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा अच्छा है, बट हमारा इलेक्ट्रॉनिकल सेक्टर, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इट्स नॉट गुड. Okay, we don't manufacture fighter jets, we don't manufacture warships, we do manufacture but not of that level. तो उसके लिए हमको दूसरे देशों पे डिपेंड करना पड़ता है, हमको इजराइल पे, हमको फ्रांस पे, उनके फाइटर जेट्स पे डिपेंड करना पड़ता है. उनके, हमारे यहाँ पे मेट्रो है बट मेट्रो यहाँ पे बनता नहीं है, मेट्रो के कोचेज़ यहाँ पे बनते नहीं है, दूसरों से आपको लाना पड़ता है. यहाँ पे अगर कोई बड़ा लिंक, सी लिंक बन रहा है, कोई बड़ा टनल बन रहा है, तो देयर आर टनल बोरिंग मशीन्स बाहर से आता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर नॉट जस्ट इंडिया, फॉर एवरी कंट्री, बट फॉर यू वी विल बी डिस्कसिंग कि जो अपना देश है उसका पोजीशन क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, क्या क्या इंपोर्ट करती है, क्या क्या एक्सपोर्ट करती है, कितने परसेंटेज में इंपोर्ट करती है, कितने परसेंटेज में एक्सपोर्ट करती है, is what you will be learning in the chapter of foreign trade of India. These are your 10 chapters, these are all of your chapters, and at the very end the main question that many of you are going to ask me, क्या सर बाकी सब रहने दो, मार्क्स बताओ ना. तो मैं बोलूँगा वेरी सिंपल, आप यादें मेरे वाले स्क्रीन को देखो मत, आप वहाँ पे देख लो, आपके मतलब का चीज़ है. नाउ इवन दो वो आपके मतलब का है, वो कोई मतलब करेगा नहीं, बिकॉज देर इज़ नथिंग विच इज़ स्पेसिफिकली अ चैप्टर विच इज़ स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज इफ यू लुक राइट फ्रॉम द अप टू द डाउन फॉर दिस 80 मार्क्स पेपर, रिटन पेपर, ओके, फ्रॉम फर्स्ट टिल 9th, every chapter is 7 or 8 marks. So your good is your guess is as good as mine कि क्या इंपॉर्टेंट है. मेरे को तो कोई चीज़ ऐसा हटके नहीं दिखती है. सिर्फ लास्ट वाला चैप्टर जो मैंने अभी भी बोला, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, वो 4 मार्क का नज़र आता है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो अनइम्पॉर्टेंट है. बाकी सारे तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो आई एम वेरी सॉरी टू से, एटलीस्ट इन दिस सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वेदर यू लाइक इट और नॉट, देर इज़ नथिंग विच इज़ स्पेसिफिकली giantly important, because on the face of it they look one and the same, and वो वैसे ही बट के आपको आपके पेपर में जो इस पैटर्न में आता है. सो यू गेट 20 marks of objectives which is your सूत्रधार to get good marks. Always in every subject objectives is absolutely, there are many students objectives पढ़ते ही नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये जो लास्ट का 16 मार्क का आपको 8 मार्क के 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, वो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इन डिटेल, 8 मार्क्स में से आपको नॉर्मली 8 out of 8 नहीं मिलता. दैट इज आफ्टर यू राइट 2.5 pages, 2.5 pages, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट मे बी अ 6 mark, 6.5 mark, बट दैट डज नॉट हैपन इन ऑब्जेक्टिव्स. मतलब एवरीबडी नोज दिस, या तो आप ध्यान देते नहीं हो या तो ध्यान देना नहीं चाहते, कि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स में मेहनत करो, आंसर इन अ सेंटेंस, आंसर इन डिटेल, यू आर गोइंग टू राइट फॉर 2.5 pages, बट एंड तब जाके आपको 6.5 marks मिलेगा, जबकि 2 pages के ऑब्जेक्टिव्स में आपको 20 marks मिलेंगे इफ़ यू आर गुड एट इट. सो माई रिक्वेस्ट इज नॉट जस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, दे आर लाइक प्रसाद जो फ्री का बांटा जा रहा है, उसमें मेहनत करना, हमेशा मेहनत करना. ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स का आपको 20 marks आएगा. देन देर इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन, देर इज स्टेट विथ रीजन्स कि आप अग्री करते हो, आप डिसअग्री करते हो, और आपको उसका रीज़न देना है. मतलब ऐसा नहीं कि आई अग्री विद दिस, क्यों, डोंट आस्क, नहीं, ऐसा नहीं है, यू हैव टू गिव अ रीज़न फॉर दैट. ओके, एंड 5 and 6 आर आंसर्स. The 5th one is again 2 answers, 4 marks each, and the 6th one is 2 answers, 8 marks each. Okay, because the previous marking pattern of chapters, it very clearly tells you कि 7-8 mark के लगभग सारे आते हैं. Okay, yes, you can analyze past papers and try to find out कि ज़्यादा टाइम किस में से बड़े आंसर्स आते हैं, कौन सी टाइप के बड़े आंसर्स आते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हो. एट माई एंड आई विल डू माई बेस्ट दैट आई कंप्लीट
the maximum portion and at least what is important in this maximum portion उस पे ज़्यादा concentration हम करें. Okay, whether it is this subject or the remaining theory subjects that are presently going on this particular platform. I hope the entire syllabus, well obviously वो शुरू भी नहीं हुआ है, but at least what can you expect in chapter number 1 right up to chapter number 10 आपको समझ में आ गया है. और अगर आया है then it's my request, please like the lecture video. सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए. कमेंट बॉक्स का उपयोग आप कर सकते हो, कोई डाउट अगर आपको हो या आपको कोई चीज़ पूछनी है. ओके, लेक्चर्स को आप प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ दुश्मनों के साथ भी बांटिए, शेयर कीजिए, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा. Somehow you can share it with your friends so that the information of this channel reaches as many as possible. And very importantly is that subscribe button. ये मैंने शुरुआत में कहा, अभी भी कहा, रिपीट कर रहा हूँ. जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑटोमेटिकली YouTube का एल्गोरिदम जो होता है, YouTube का AI जो होता है, वो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है, यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, और फिर वो चैनल की इंफॉर्मेशन और लोगों तक लेकर जाता है. टिल द टाइम वी मीट अगेन, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स, टेक केयर ऑफ़ एवरीवन नियर एंड डियर टू यू. ओके, अपना ख्याल रखना. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय फॉर नाउ.